कनाडा का विजिटर वीजा और वर्क परमिट इजी हो गया है फैमिलीज और उनके किड्स के लिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्टर का रीसेंट अनाउंसमेंट ऑन फैमिली रीयूनिफिकेशन एंड एड्रेसिंग द लेबर शॉर्टेजेस। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं recent major announcement for family reunification और जो लेबर शॉर्टेजेस है उनको रिड्यूस करने के लिए जो शॉन फ्रेजर ने रीसेंट अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन जिसे हम TRV भी बोलते हैं, उसका जो टाइमलाइन है वो 30 डेज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड मेजर अनाउंसमेंट है जिसके अंदर डेडिकेटेड टूल है फॉर TRV एप्लीकेशन फॉर स्पाउसेस। थर्ड जो मेजर अनाउंसमेंट है, इसके अंदर जो फैमिली क्लास एप्लीकेशन है जो कि वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होती, अब इस केस में कैंडिडेट अगर फैमिली क्लास एप्लीकेशन में आपकी स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन लगी हुई है तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। प्लस अगर वर्किंग एज किड्स हैं तो वो स्टडी परमिट या वर्क परमिट के लिए वो भी एलिजिबल हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस भी किसी कैंडिडेट का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है अगस्त 1 से 31 दिसंबर के बीच, वो सभी कैंडिडेट ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिनिस्टर का अनाउंसमेंट और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप सारे जो पॉइंटर्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। We've successfully eliminated the backlog of temporary residence visas for family members who already have a permanent residency application in process. And very importantly, our new approach towards spousal TRV applications has approved well in advance of 98% of applications, so spouses and their kids can be with their families while they await the processing of their permanent residency application. Going forward, this new approach to processing spousal and children's TRV applications are going to lead to a processing time within 30 days. I'm also happy to report that our modernization efforts have enabled us to process new permanent residency applications within the 12-month standard that we enjoyed before the pandemic. We've been meeting that standard back since July. That's why we're also announcing today that we're launching a new initiative that will issue open work permits to spousal applicants and their dependent children, regardless of whether they applied under the family class program for overseas applicants or under the spouse or common law partner in Canada class. Last but not least, beginning June 7th, many open work permit holders whose current permit expires by the end of 2023 will be able to extend their permits for an additional 18 months using a free facilitated process like the one that we've recently used to extend postgraduate work permit holders. And this is going to impact about 25,000 people who currently are in Canada and have the ability to work. This process will be available to a number of open work permit holder categories, and sticking with today's theme of keeping families together, it includes spouses and dependents of most workers who are here temporarily, spouses of international students, and permanent residence applicants and their spouses and dependents who are waiting for their permanent residency to be finalized. जैसा कि आपने मिनिस्टर का अनाउंसमेंट देखा, अब मैं जो स्टेप बाय स्टेप जो भी अनाउंसमेंट है उसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है, जो प्रोसेसिंग टाइमलाइन है विजिटर वीजा एप्लीकेशन का, इट वुड बी 30 डेज। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी एप्लीकेंट की स्पाउजल और फैमिली एप्लीकेशंस इन प्रोसेस है, स्पाउजल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, और वो अपना TRV जिसे हम विजिटर वीजा भी कहते हैं एप्लीकेशन लगाता है या लगाती है, तो आपकी जो विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन है वो 30 डेज टाइमलाइंस में प्रोसेस हो जाएगी और आप अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट होके कनाडा में रह सकते हैं वाइल वेटिंग फॉर योर PR एप्लीकेशन। सही सुना आपने। आप जो प्रोसेसिंग टाइमलाइंस है विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन का, जो फैमिली एप्लीकेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है उनका 30 डेज टाइमलाइन हो गया है। मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है ताकि फैमिलीज रीयूनाइट हो सके, साथ में रह सके, बिकॉज जो स्पाउजल स्पॉन्सरशिप के टाइमलाइंस होती हैं वो ऑलमोस्ट 12 मंथ से 15 मंथ्स के बीच रहती हैं, विच इज़ लाइक 1 से 1.5 साल अगर आप अपनी फैमिली से अलग रह रहे हो वाइल योर PR एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। बट इस केस में आप अपनी फैमिलीज के साथ रह सकते हैं, आप कनाडा आके उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वो जो एप्लीकेशन है वो 30 डेज में प्रोसेस हो जाएंगी।
सेकेंड जो मेजर अनाउंसमेंट है उसके अंदर है डेडिकेटेड प्रोसेसिंग टूल फॉर TRV स्पाउसल एप्लीकेंट, विच मीन्स जो विजिटर वीज़ा के एप्लीकेंट है जिनकी स्पाउसल एप्लीकेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है, उनका एक डेडिकेटेड टूल है। इट कुड बी दैट उनकी स्पाउसल एप्लीकेशन और विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन लिंक होगी, या किसी तरीके से वीज़ा ऑफिसर को ये पता चल जाएगा कि इन कैंडिडेट की स्पाउसल एप्लीकेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है और वो जल्दी से जल्दी उनकी विजिटर वीज़ा डिपेंडेंट्स की और स्पाउस की प्रोसेस कर देंगे। जी हाँ, पहले होता था कि हम लोग जब भी स्पाउसल एप्लीकेशन लगाते तो वो सेपरेट एसेस होती थी, और अगर हम उसके बिहाफ पे कोई भी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन या TRV एप्लीकेशन लगाते थे स्पाउस की या डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, तो वो एक सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जिनके बेसिस पे असेस होती थी। लेकिन अब इन्होंने एक सेपरेट प्रोसेसिंग टूल बना दिया है। हो सकता है वो टूल कनेक्टेड हो तो वीज़ा ऑफिसर ये देख पाए कि जो भी कैंडिडेट स्पाउसल कैटेगरी में TRV लगा रहे हैं उनकी PR एप्लीकेशन इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, तो उनका जो टाइमलाइंस है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वो 30 डेज है। तो इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू जो प्रोसेसिंग है और जो एफिशिएंसी है वीज़ा ऑफिसर्स की वो बढ़ जाएगी बेसिकली, और जो रीयूनिफिकेशन प्रोसेस है वो भी ईजी हो जाएगा। थर्ड जो मेजर अनाउंसमेंट है वो है ओपन वर्क परमिट फॉर स्पाउसल एंड फैमिली क्लास एप्लीकेंट। जब भी हम स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो दो टाइप की एप्लीकेशंस होती है, या तो कैंडिडेट विद इन कैनेडा लगाता है जहाँ पे वो ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होता है, जिसे हम इन कैनेडा क्लास भी कहते हैं, और अगर हम फैमिली क्लास में स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो आउटसाइड कैनेडा होती है, जिसको हम फैमिली क्लास एप्लीकेशन स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन भी कहते हैं। लेकिन जो फैमिली क्लास एप्लीकेशन है उसमें कैंडिडेट या स्पाउस जो होता है वो ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होता। लेकिन ये एक स्पेशल मेजर लिया गया है जिसके अंदर कैंडिडेट ने अगर फैमिली क्लास एप्लीकेशन भी लगाई है तो उनके डिपेंडेंट और जो स्पाउस हैं वो ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फैमिली क्लास एप्लीकेशन लगी हुई है जहाँ पे आपकी जो फैमिलीज है वो होम कंट्री में है और आप कनाडा में हैं, तो आप उनका ओपन वर्क परमिट भी लगा सकते हैं फॉर योर फैमिलीज एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ये बेसिकली अनाउंसमेंट हुआ है जिसके अंदर फैमिलीज जो आपकी स्पाउसेस हैं वो आकर आपको कनाडा में सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी वो वर्क कर सकते हैं लीगली विद इन कनाडा, जिससे कि जो लेबर शॉर्टेजेस हैं, जो कनाडा में लेबर शॉर्टेजेस हम लोग ऑन डेली बेसिस डिस्कस करते हैं, वो भी रिड्यूस होंगी, बिकॉज नाउ वी हैव मोर पीपल टू वर्क इन कनाडा, राइट, जो ओपन वर्क परमिट पे अवेलेबल हैं। जो फोर्थ मेजर अनाउंसमेंट है वो है एक्सटेंशन ऑफ द ओपन वर्क परमिट होल्डर्स। जिन भी कैंडिडेट का वर्क परमिट अगस्त 1 से लेके दिसंबर 31, 2023 के बीच में एक्सपायर हो रहा है और उनकी PR एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, those candidate are eligible for 18 months extension। जी हाँ दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट जो स्पाउसल एप्लीकेशंस हैं, जहाँ ओपन वर्क परमिट होल्डर्स हैं, ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट पे हैं, जिनकी PR एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, वो कैंडिडेट 18 मंथ्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है अगस्त 1 से 31 ऑफ दिसंबर 2023 के बीच। इस पर्टिकुलर मेजर्स के थ्रू जो लेबर शॉर्टेज है कनाडा में वो कम हो जाएगी, मोर एंड मोर कैंडिडेट अवेलेबल होंगे, स्किल कैंडिडेट अवेलेबल होंगे पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। इन पर्टिकुलर मेजर्स के थ्रू ना सिर्फ फैमिली रियूनिफिकेशन को फोकस किया जा रहा है और इम्पोर्टेंस दी जा रही है जहाँ पे स्पाउसेस, डिपेंडेंट फैमिलीज जो है वो साथ में रहे, बल्कि जो कनाडा की लेबर शॉर्टेजेस है उनको भी फुलफिल किया जा रहा है। जो क्रूशियल लेबर शॉर्टेजेस हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है थ्रू दोज टेम्पररी मेजर्स। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 101 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।